welcoming you all on today's online session for accountancy part 2, chapter number 2, that is accounting for debentures. Till now we have seen about the share capital, okay, in which the shareholders used to get the dividend. There are two types of shares, one is equity, one is preference. Now it comes to debentures, where we have to pay a fixed rate of interest to the debenture holders. On shares, the company used to pay the dividend, okay. On debentures, the company has to pay the fixed rate of interest. There are various types of debentures, okay. Types are mentioned in the textbook. I have already explained later on, okay. Just watch till the end. So debentures carry a fixed rate of interest, whether the company earns profit or not. It doesn't matter, but yes, the company has to compulsorily pay the amount of interest. Okay, so it is considered as an expense for the business. It's considered as an expense for the business. At the time of liquidation of the company, when the company winds up, when the company liquidates, at that time they have the first right, prior rights, before preference shares, they will pay the amount of capital, the amount of debenture capital. Okay, so मतलब नुकसान का कोई चार्जेस है ही नहीं. फिक्स टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे कंपनी यहाँ पे डिबेंचर्स बेचती है. डिबेंचर्स पे अलग अलग टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, ठीक है. इंटरेस्ट का अमाउंट या तो हर साल पे करो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, या लमसम एक साथ में पे कर दूंगा विद प्रिंसिपल, जैसा चाहे वैसा लोग पे आप कर सकते हैं. दे आर कॉल्ड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी इज टेकिंग अ डेब्ट. मैं उधार ले रहा हूं आपके पास, ठीक है. इन दैट पर्टिकुलर केसेस यहाँ पे जो मैं उधार लेता हूँ, entries, basic entries are same as equity share capital, the share capital, and same way application, allotment, first call, final call वैसे करती है. Here also some of the debenture holders may not pay the amount. It's called as calls in arrears. Here also might be possible some of the debenture holders used to pay in advance, that is called as calls in advance. Okay, but here what is the main difference between share capital and debenture? Is that in share capital, we are making them the owners. Okay, here they are called the creditors. Means company is taking a debt, a loan from public. Okay, so if the public is not paying the amount of loan, we are taking the loan now. So we cannot tell कि भाई तूने जो लोन मुझे आपने दिया है ना, तेरा लोन को मेरा हो गया, forfeit हो गया, बेटा आपको लोन के पैसे वापस नहीं मिलेंगे. These type of sentences we cannot tell. In share capital we used to forfeit and reissue, but in debentures we cannot forfeit because here we are taking a loan. Okay, not for capital, but for short-term purpose, making them a creditors, making as a debt of the company. Okay, तो यहाँ पे अगर लोन के पैसे को थोड़ा बहुत भी मिलता है, आप कौन सी एरियाज दिखा सकते हो, बट आप उसको फोरफिट या रीइश्यू नहीं कर सकते. ये कोई आपका शेयर कैपिटल नहीं है. ओके ना. Here also pro ratas are available. Here also pro rata are available here also. Okay, तो आपको वो भी पता है कि कैसे pro rata करना है. एक्स्ट्रा पैसे जो मिलते हैं मुझे, उसको मुझे आगे जाके यूज आगे करना होता है. तो बेसिक एंट्रीज वो सेम ही है. मैं आपको लिख देता हूं. एप्लीकेशन की जो एंट्री है वो आपको अभी भी याद होगा. सो पहली जो एंट्री है जो एप्लीकेशन के मुझे पैसे मिलते हैं, उसमें ऐसा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो आप लिखिएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन. जहां पे शेयर कैपिटल था वहां पे वर्ड यूज हो गया डिबेंचर. उसके बाद सेकेंड एंट्री थी मेरी यहाँ पे डिबेंचर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज होगा. अब तो इंटरेस्ट पे तो परसेंटेज होगा. टू परसेंटेज जो भी दिया होगा सपोज 10% डिबेंचर अकाउंट. फिर अलॉटमेंट के पैसे मंगवाते हैं. ओके, सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट. फिर इसके पैसे मिलते हैं मुझे. ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर allotment account. In the same way, we used to call for the amount of calls, whether it's first call, second call, final call, whatever it is. Okay, so we are asking for call amount, debenture call account
percentage debenture account, and then we receive the amount of call. So at that time we used to pass the entry as bank account debit to debenture call account. So these are the basic entries which we have already learned in previous chapter, that is Sai Capital. Just over here we have changed the name from Sai Capital to it's become debenture. Nothing else. The basic entries say, in case if you are receiving more applications, okay, suppose that we want the application debentures for 1 lakh, 1 lakh debenture gone, we get 1,20,000, तो 1,20,000 का पहले सब यहाँ निकालना है, फिर यहाँ पे 2 बैंक करके हम 20 वापस कर देते हैं, वही फंडा वही है, सेम थिंग. ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट में आता है, अलॉटमेंट में होगा तो क्रेडिट में आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम. यहाँ पे से एक चीज नहीं है कि यहाँ पे डिस्काउंट होगा, डिबेंचर डिस्काउंट, दैट्स न्यू. Shares cannot be issued at discount, but yes, debenture can be issued at discount. Debenture can be issued at discount. वो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे है. तो डिस्काउंट बेसिकली तो अलॉटमेंट में देना है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, इसमें होता है. ठीक है, और डिस्काउंट के पैसे कोई पेड तो करता नहीं, पर डिस्काउंट का हिसाब मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ता है. ओके, एंड आफ्टर दैट कॉल्सिंग एरियर्स, कॉल्सिंग जहां जहां पे है अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे करे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. और कॉल के पैसे पे नहीं करे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिंग एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट. होप सो आपको क्लियर है. इक्विटी के एंट्रीज अगर क्लियर है तो ये बेसिक एंट्रीज आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पे है. आई होप सो दैट कि आपको पता है कि आपने एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इक्विटी साइड कैपिटल प्रीवियस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू कि लॉजिकली आपको सोच के एंट्रीज करनी है. तो आपने वहां पे भी बहुत जगह पे एंट्रीज देखी है, मेरे वीडियोस आपने ध्यान से देखे हैं, कौन सी आपने क्या एंट्री पास करते हैं वो आपको देखा है. मेरे साथ साथ आपने वो सारे सम्स यहाँ पे किए हुए हैं साई कैपिटल के. सो आई अज्यूम दैट कि आपने वो किया है तो आपको ये समझ में इजीली आता है. ठीक है, वो नहीं किया है तो बेटा वापस से पहले साई कैपिटल करो, उसके बाद इस चैप्टर की वीडियोस का आराम से देखते रहना. ओके, जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको ये भी नहीं आएगा. ओके, तो बेसिक्स जो है मैंने आपको बता दिया है. ओके, अटैचिंग द सम्स विद दिस वीडियो. ओके, वॉच द वीडियो टिल द एंड. इन द नेक्स्ट lecture, in the next video, I will be dealing with issue and redemption of debentures. Issue मतलब मैं कितने में बेच रहा हूँ, redemption मतलब मुझे वापस यहाँ पे कितना करना है, मैंने लिया कितना और मुझे देना यहाँ पे कितना है. Okay, that's called as issue and redemption debentures. Till then, watch the video till the end. Stay home, stay safe, and keep learning. Have a nice day. Hello everyone, welcoming you all in today's online session for accountancy part 2, standard 12, chapter number 2, that's debentures. I have already told you to go through the chapter 1 for theory. So once again, some important theories if it is, I'll let you know. So number 1, डिबेंचर एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जहाँ पर मनी लेंड देते हैं या लेते हैं एज अ लोन टू द कंपनी. इट मीन्स डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि कंपनी की डेप्थ है, कंपनी मुझसे उधार ले रही है. नंबर 2, डिबेंचर वन टाइप का सिक्योरिटी है जो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय करता है. शेयर्स में क्या होता है, डिविडेंड होता है. डिबेंचर्स में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो मुझे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पे करना पड़ता है. वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट या नॉट, कंपनी प्रॉफिट कमाती है कि नहीं कमाती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी गॉट टू पे द इंटरेस्ट. नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेएबल एट अ फिक्स्ड रेट, फिक्स रेट पे मुझे पे यहाँ पे करना पड़ता है. नंबर 4, वन डिबेंचर इश्यूड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम डिबेंचर बेचते हैं तो फिक्स टाइम पीरियड खत्म होने के बाद मुझे उसके पैसे रीपेमेंट यहाँ पे कर देने होते हैं एज पर द एग्रीड टर्म्स. Number 5, as per Company Act 013, no company is allowed to issue debentures having a maturity date of more than 10 years. कोई भी कंपनी यहाँ पे 10 साल के ऊपर डिबेंचर्स यहाँ पे नहीं बेचेगी. हाउएवर अगर कोई कंपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स के लिए डिबेंचर बेच सकती है, लेकिन 30 ईयर्स से कम के लिए बेचना है. नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैन बी इशूड विद और विदाउट चार्ज. विद और विदाउट चार्ज का मतलब मॉर्गेज रखने की बात है. अगर मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी पे बस मॉर्गेज करके मैं डिबेंचर बेच सकता हूँ, या तो फिर विदाउट मॉर्गेज भी विदाउट सिक्योरिटी पे मैं डिबेंचर सब बेच सकता हूँ. नंबर 7,
यूजुअली डिबेंचर्स यहाँ पे लिस्टिंग होती है ऑन स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर द इश्यू देयरऑफ। अब परचेज और सेलिंग करना यहाँ पे काफ़ी इजी बन जाता है। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी कंपनी का नाम लिस्टिंग करवाता हूँ और डिबेंचर्स बेचता हूँ, डिबेंचर्स की लिस्टिंग करवाता हूँ, तो जिसके पास भी डिबेंचर होंगे दे आर कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर्स, वो इजीली परचेज सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ कंपनी इवन। नंबर 8, इफ द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स सो प्रोवाइड द डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। पहले से ही मैं क्लियर करता हूँ कौन से टाइप के डिबेंचर्स पे बेच रहा हूँ। अगर इसमें टर्म्स में ऐसा लिखा है कि भाई आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मैं आपके डिबेंचर को कन्वर्ट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, तो भी पॉसिबल यहाँ पे है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर सोना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, वन टाइप की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। कंपनी फाइनल अकाउंट्स के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाई जाती है और इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट में। नंबर 10, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, उनके पास नहीं होते कंपनी के कोई भी मैटर के अंदर। नंबर 11, डिबेंचर्स कैन नॉट बी फोरफिटेड। ये मैं एक टाइप का लोन ले रहा हूँ, तो आप आधा लोन दोगे तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि तेरा आधा लोन अब गया, फोरफिट हो गया, ठीक है। तो ये कभी फोरफिटेड इशू नहीं होता है। एंड नंबर 12, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी यहाँ पे बंद होने वाली होती है तो डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे पहले दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी। प्रॉपर्टी पेपर्स, उसके अंदर पहला है सिक्योर या मॉर्गेज डिबेंचर्स। कंपनी को खुद के प्रॉपर्टी पेपर्स बैंक में या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर मॉर्गेज रखना पड़ता है, फिर कंपनी डिबेंचर्स पे बेच सकती है। फर्स्ट मॉर्गेज पहला क्लेम, सेकेंड मॉर्गेज उसके बाद वाला क्लेम। अनसिक्योर्ड, कंपनी यहाँ पे कोई भी टाइप के प्रॉपर्टी पेपर्स मॉर्गेज यहाँ पे नहीं करेगी, ऐसे ही डिबेंचर्स बेचेगी। दैट्स कॉल्ड अनसिक्योर्ड, सिंपल या नेकेड डिबेंचर्स। एज पर नेगोशिएबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर रिडेम्पशन, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। जो भी डिबेंचर्स मार्केट में कंपनी यहाँ पे इशू करती है, दैट पर्टिकुलर टाइम पे रजिस्टर पे आपके नाम लिखे जाते हैं कि डिबेंचर मैंने इसको मैंने डिबेंचर्स दिए है, इसके बाद से मैंने अमाउंट कलेक्ट किया है। टाइम खत्म होने के बाद आप ही के पास से वापस डिबेंचर सर्टिफिकेट यहाँ पे कलेक्ट करूँगा, आपको आपके पैसे वापस करूँगा विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। पीरियड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर कोई नाम लिखा नहीं होगा, सर्टिफिकेट के ऊपर कोई नाम लिखा नहीं होगा। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे डिबेंचर्स यहाँ पे लेके आएगा उसको मैं उसके पैसे वापस यहाँ पे कर दूंगा। ओके, जैसे बियरर चेक की तरह काम यहाँ पे चलता है। रिडीमेबल एज पर कंडीशन ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल इररिडीमेबल। रिडीमेबल टाइम पीरियड फिक्स होता है, वो टाइम के बाद आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, रिडीमेबल। इररिडीमेबल, आपको आपके पैसे वापस तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कंपनी नहीं चाहती है। कंपनी जब लिक्विडेट होगी आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, टिल दैट टाइम आपको आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऑन द बेस ऑफ कंडीशंस फॉर कन्वर्टेबिलिटी, मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि कौन से टाइप के डिबेंचर्स बेच रहा हूँ। अगर पहले से बोल दिया कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मैं इशू कर रहा हूँ इन दैट पर्टिकुलर केस हिसाब पे, टाइम खत्म होने के बाद मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, चाहे पार्टली हो, चाहे फुल्ली हो, चाहे क्वार्टरली हो, जैसे भी आप कंडीशन रखी होगी वैसे मैं आपको कन्वर्ट यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल मैं आपको कन्वर्ट नहीं कर सकता, टाइम पीरियड यहाँ पे खत्म होने के बाद मुझे आपको आपके पैसे ही वापस यहाँ पे करने पड़ेंगे। ओके, तो थियोरेटिकल में कुछ इस तरीके से है बेसिकली जो आपको गो थ्रू करने को मैंने कहा गया था। कुछ एंट्रीज आपको जो दिखेगी वो बेसिकली जो हमने शेयर्स में किया है वैसी एंट्रीज ही है। so, जब डिबेंचर मैंने इश्यू किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे। ओके, तो पहले आपको एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो परसेंटेज दिया, सपोज 10% टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो वैसे ट्रांसफ़र करना है। एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट की भी 2, फर्स्ट कॉल की भी, फाइन कॉल की भी 2, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, फॉरफीचर वगैरह यहाँ पे नहीं होता, ध्यान रहे थोड़ा सा। ओके, कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, Ashok Mills Limited issued 8,000 debentures of ₹100 each for public subscription. Interest is to be paid at a rate of 8% per annum on debentures. The amount were called up debentures is as under. Application 30, allotment 40, call 30. Application मुझे मिला है 10,000 debentures के लिए. After allotment of 8,000 debentures, reject excess applications of debentures and refunded the money to applicants. All the amount due on allotment and call were duly issued. ठीक है। सिर्फ जहाँ पे शेयर कैपिटल नाम लिख रहे थे वहाँ पे आप लिखना है मुझे यहाँ पे 8% डिबेंचर्स। तो पहली एंट्री क्या आएगी, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30। उसके बाद 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 टू
8% डिबेंचर अकाउंट 8,000 इंटू 30 टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 30, जो मैंने यहाँ पे रिफंड यहाँ पे कर दिया है। ओके, फिर मंगवाते हैं, आप चेक कर सकते हो उसकी एंट्रीज। फिर मंगवाते हैं अलॉटमेंट, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 40 to 8% डिबेंचर। ओके, फिर बैंक अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर मंगवाते हैं कॉल, 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर अकाउंट 8,000 इंटू 30। अब उसके पैसे मिलेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट to 8% डिबेंचर कॉल अकाउंट। आई होप से आपको क्लियर हो चुका है कि कहाँ पे क्या करना होता है। सेम ही है, सिर्फ नाम में थोड़ा बहुत चेंज है। ओके, प्रीमियम में भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना प्रीमियम मंगवा सकते हो। हाँ, डिबेंचर्स हम डिस्काउंट में भी देते हैं, शेयर्स के भी डिस्काउंट में दे नहीं सकते, बट यस डिबेंचर वी कैन इश्यू एट डिस्काउंट इवन। गुजरात लिमिटेड issued 5,000 10% debentures of ₹200 each at premium of 20%, on which the amount per debentures was called up as under 60 on application, 100 on allotment, including premium है, मतलब 60 plus 40, 200 का 20% दैट इज़ 40 होता है। ओके, तो मतलब अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम में मतलब 60 plus 40। और रिटर्न फाइनल कॉल, कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 8,000 डिबेंचर्स के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन मुझे रिजेक्ट यहाँ पे करना है और रिफंड यहाँ पे करना है। तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 इंटू 60। ओके, उसके बाद 8% डिबेंचर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 60 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 5,000 इंटू 60 टू बैंक अकाउंट 3,000 इंटू 60। उसके बाद आता है अलॉटमेंट, 8% डिबेंचर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 into 100 to 10% debenture account 5,000 into 60 to securities premium 5,000 into 40। अब उसके पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 into 100 to 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 into 100। फिर कॉल मंगवाना है, 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट 5,000 into 80 to 10% डिबेंचर अकाउंट। अब पैसे मिलेंगे उसके बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल 5,000 इंटू 80। ओके, अब एंट्रीज देख सकते हो। जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ओके, प्रीमियम क्रेडिट में आ रहा था, डिस्काउंट ऑफ डेबिट साइड पे आएगा, देख लीजिए। राजकोट ऑयल लिमिटेड issued 8,000 10% डिबेंचर रुपीज़ 100 ईच एट ए प्राइस ऑफ रुपीज़ 90 पर डिबेंचर। हो गया, 90 में दिया, 10 रुपये कम में दिए। द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर 30 एप्लीकेशन 40 अलॉटमेंट, मतलब 50 माइनस 10 तो 40 आया। ठीक है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। एंड 20 कॉल, कंपनी को 8,000 डिबेंचर्स मिले हैं। ओके, एक्सेप्ट ऑन 300 डिबेंचर द कंपनी रिसीव्ड फुल अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। कॉल पे से 300 रुपये मुझे यहाँ पे नहीं मिले हैं। यहाँ पे कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एडवांस पॉसिबल है, बट फोरफीचर एंड रीइश्यू पॉसिबल नहीं है। तो नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 इंटू 30। उसके बाद 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 इंटू 30 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 इंटू 30। फिर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 40, 10% डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 10 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 8,000 इंटू 50। ओके, अब एंट्री चेक कर सकते हो, एक बार देख लो। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 इंटू 40। डिस्काउंट तो कोई पे नहीं करेगा, फिर कॉल के पैसे मंगवाते हैं। 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 20 टू 10% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद उसके पैसे मुझे मिले। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियाज, मुझे 300 पे 20 रुपीज़ नहीं मिले हैं। कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट 300 इंटू 20, बैंक अकाउंट डेबिट रिमेनिंग अमाउंट लिख देंगे 7,700 इंटू 30 टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट 8,000 इंटू 20 है, नॉट 30, 20। Illustration number 4. Punjab Limited issued 25,000 11% debentures of ₹100 each. The money per debenture was payable as under 30 application, 35 allotment, 35 first and final call. हो गया 100 रुपये का हिसाब। All the debentures were applied. Joginder, the holder of 8,000 debentures, paid the entire amount
ऑन इज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, पूरा पैसा उसने अलॉटमेंट में दे दिया। Whereas Harjit Singh, the holder of 200 debentures, failed to pay the allotment and call money. हरजीत सिंह यहाँ पे 200 पे अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पे एडवांस भी है, यहाँ पे कॉल्स इन एरियाज भी अवेलेबल है। ओके चलो 25,000 है डिबेंचर्स, 800 वाले ने पूरा पैसा दे दिया अलॉटमेंट के अंदर, 30, 35, 35। ओके लेट्स सी बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 इंटू 30, फिर 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 25,000 इंटू 30। अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाने हैं, 11% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स 25,000 इंटू 35। अब पैसे मिलने की बारी और एडवांस की भी बारी। ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट बाद में बताता हूँ मैं। कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट, कितना एरियाज था मेरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 200 इंटू 35 का एरियाज था और 800 इंटू 35 एडवांस में था। ओके तो कॉल्स इन एरियाज में 200 इंटू 35 दैट इज 7,000 टू 11% डिबेंचर इस अलॉटमेंट के अंदर 25,000 इंटू 35। ओके दो अमाउंट क्लियर की। टू कॉल्स इन एडवांस के अंदर 800 इंटू 35 और फिर डिफरेंस अमाउंट लिख देंगे हम बैंक में। ओके तो विद दैट हम सब अमाउंट फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद डिबेंचर कॉल के पैसे मंगवाए, 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 8,000 इंटू 35। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आपको सबका यहाँ पे हिसाब यहाँ पे दे देना है। 800 का एडवांस चल रहा था, 200 का एरियर्स यहाँ पे चल रहा था। ओके मतलब 1,000 पे नहीं मिलेगा, बाकी 7,000 पे 35 मुझे मिल जाएगा। ये बता सो इस तरीके से हमें सब यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। ओके नेक्स्ट टॉपिक इज माई प्रोडक्ट वाला टॉपिक, इलस्ट्रेशन नंबर 5। Mohan Krishna Limited issued 80,000 10% debentures at the face value of ₹500 each at a premium of 10%. Amount was payable as under 250 on application including premium. Premium कितने का है? 10% मतलब 50 रुपये का प्रीमियम है, तो 200 + 50 एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, मैं 300 रुपये अलॉटमेंट के अंदर मंगवाए। दिस डिबेंचर्स वर रिडीमेबल आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद मुझे उसके पैसे वापस करने हैं। एप्लीकेशन वर इश्यूड बाय द कंपनी फॉर 1 लाख डिबेंचर्स के लिए मिले। अलॉटमेंट ऑफ 80,000 डिबेंचर्स मेड ऑफ प्रोडक्ट बेसिस, 1 लाख को 80,000 देने हैं। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 पे 250 जो मुझे मिले हैं वो। उसके बाद 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 250 जो अमाउंट है वो, और 10% डिबेंचर अकाउंट 80,000 इंटू 200 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 80,000 इंटू 50 टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 इंटू 250 जो एक्स्ट्रा पैसे मिले अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ भी रिफंड यहाँ पे किया नहीं है। फिर 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 80,000 इंटू 30। मुझे ऑलरेडी अलॉटमेंट के 50 लाख मिल चुके थे, तो 2 करोड़ 40 लाख में से 50 लाख अब मुझे नहीं मिलेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट मुझे मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1 करोड़ 90 लाख। ओके सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। आई होप सो इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आपको बताया है डिबेंचर्स क्या होता है, बेसिक एंट्री कैसे मुझे पास ऑन यहाँ पे करनी है, तो थोड़ा बहुत जो हमने पहले किया हुआ था वैसा ही है। ओके जो हमने अभी रिसेंटली देखा है, आगे कुछ चेंजेस आएंगे वो हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करेंगे, बट आई होप सो इतने पॉइंट जो हमने 1 to 5 लेसन देखे है वो काफ़ी आपके लिए ईजी यहाँ पे था। So we'll meet in the next lecture with some new topics. Okay, till the time, have a nice day, stay home, stay safe and keep learning.